बनाओ, किन किन जाना जयपुर, किन किन जाना जयपुर, किन किन जाना जयपुर। तो आज हम दिखने में जयपुर इंडिया का बहुत ही खूबसूरत सिटी, पिंक सिटी को बहुत अच्छे से जो है इसका रिव्यू देखने वाले हैं। एक बहुत खूबसूरत सी लड़की जो है वो व्लॉग बना रही है और जयपुर के बारे में बहुत सारी चीजें जो है हमारे तक पहुंचा रही है। वीडियो को देखते हैं, वीडियो अमेजिंग हो जाएगी। लास्ट में देखिएगा, लास्ट तक जो है चैनल को वीडियो को लास्ट में देखिएगा, चैनल के साथ जुड़ जाइए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Great history, royal palaces, massive forts and some yummy Rajasthani cuisine. This is the Pink City. अब राजा महाराजाओं के शहर में यार अपने आप रॉयल फीलिंग आ ही जाती है। I am Barkha Singh and welcome to my show Bazaar Travels, and today we are in the Pink City, Jaipur. महाराजा वाला के ना, जहाँ पे महाराज I'm at the iconic Gem Palace in Jaipur, and this was established by the Kasliwal family in 1852. So technically, this place has been around for over 160 years, catering to generations of royalty. So just imagine the kind of quality and craftsmanship they have. And honestly, I'm quite overwhelmed by the overall vibe of this place, the jewelry, the gems, and all of it. I'm gonna have a word with the owners and get to know all about Jaipur, the city of jewels. Let's go. This city was built as one of the jewelry centers, and for Gem Palace, one of the most important thing for us is craftsmanship, and that's what we are trying to do, is to keep this alive and use the same techniques that was used 300 years ago. So everything here is all handmade. Everything what you see here Oh wow! is Navratna, which was also Navgreh. This is not on sale, is it? No, of course not. So I'm definitely trying it on. And this is the Navratna stones, signifying the 9 planets. You're the 9th generation of jewelers, so that must be pretty exciting. And talking about your clientele, I've heard some celebrities have come here, and there's Princess Diana and Prince Charles. Because of the history and the legacy of Gem Palace, people have this impression that, oh my God, I'm entering Gem Palace, unaffordable, out of my budget, so they're scared, which is not the case. We have everything. We have like small earrings for 15,000-20,000 souvenirs. We also customize things for people that could be for $1,000, let's say, for foreigners. So I think it's a culture in Rajasthan for men to also very, very proudly wear jewelry and show it off. Traditionally, men wore more jewelry than women because Maharajas had much better jewelry collection than the Maharanis. Right. Ooh, what is this? Anticipating for my marriage. It's still not happened yet, but we have the surface. You wear a turban and it goes on the side. In old time, it will just go into the ceremony. Right. But in today's time, if I take this off, and this can go to my future wife. Oh! So it becomes a choker. That's so cool. Who do you think is gonna go first? Our younger brother. For sure, our younger brother. I'm not getting married anytime soon, but when I do, I'm definitely gonna see you guys again. So thank you so much, guys. Thank It was a Thank you. It pleasure. was a pleasure. Exquisite jewelry is something you can't wear every day. You only use them for special occasions. लेकिन मुझे तो jewelry बहुत पसंद है और मुझे everyday पहननी होती है. So that's why I'm here in Johari Bazaar, where there are lots of small shops and they have amazing collection of some really good pocket-friendly options. पूरा set कितने में आएगा? 3500 का मैम. There's a perfect mix of traditional and modern stuff here. It's a very traditional design
But the whole earring as a whole is very, very modern. Ooh, look at this. So it also has work at the back. Both side मीनाकारी. Both side है मीनाकारी वो. You know what? I'm absolutely loving this place. I'm gonna send my stylist. अब याद रखेगा मेरा नाम बरखा है. पलट मत जाना. Jaipur has a lot of bazaars. There is Sanjay Bazaar, Bapu Bazaar, Tripolia Bazaar, Chandrapal Bazaar. So we're currently crossing Bapu Bazaar, जो बहुत ही cool बाजार है. But it's mainly for shoes, clothes and really good bags. जयपुर आए और मोजरी नहीं खरीदी. क्या बात कर रहे हो? शाहरुख भाई, सलमान भाई और ऋतिक भाई भी आए हुए हैं, राकेश रोशन भाई भी आए हुए हैं, सब आते हैं हमारी तो दुकान। आपने उनके साथ फोटो वोटो खिंचाई? हम फोटो वो देते हैं, इनकी रेपुटेशन अलग होती है, हमारी गुडविल अलग है। Dude, they're wonderful, really bright, vibrant colors. तो मेरे लिए जो नॉन लेदर वाली है, कौन सी थी आपने ये दिखाई non थी? leather। ये आप मेरे को कितने में देंगे? दे देंगे आप, कितने में? आपको लेस करके दे देंगे 400। 400 तो है ही जूती। 300 दे देना बस। नहीं, आप मेरे को और अच्छा प्राइस दो। अच्छा चुपचाप बोलो, कितने में दोगे लास्ट? अच्छा 250 दे। नो, और कम कीजिए। 200 ओके। 100 100 में नहीं नहीं? 100 अच्छा 200 लास्ट है। 200 बेस्ट है? Best. बेस्ट है ना? बेस्ट बेस्ट है। बेस्ट डिजाइन, बेस्ट है। बेस्ट बेस्ट। बेस्ट। जहाँ आप बैठे हैं ये जयपुर की राजधानी का पहला चौराहा पसता है। पलक उठा के देखिए, वो सामने हवा महल है जी। उससे और ऊंचे पलक ऊपर कीजिए, वहाँ सामने है ना सिटी पैलेस नजर आएगा आपको। तो आप ये कब से कितने टाइम से कर रहे हैं पगड़ी बनाने का? हमें काम करते करते सिर्फ 27 साल हुए हैं, लेकिन हमारे सिर्फ 27 साल। जी। मेरी उम्र 27 साल है। और आप मेरे को कौन सी पगड़ी बनाएंगे आज? जयपुरी साफा। Who knew I'd come to Jaipur and become a पगड़ी assistant? Not complaining, बहुत मजा आ रहा है। मैं कैसी असिस्टेंट हूँ? बहुत बढ़िया। पधार रहे हैं द किंग ऑफ जौहरी बाजार। पगड़ी ने तो पूरा एटीट्यूड ही बदल दिया। So I'm in Jaipur's bustling Johari Bazaar on my way to Rana Sari Emporium. This is a 170-year-old shop. ये लोग पता है राजा महाराजाओं के लिए कपड़े बनाते थे। Oh, I'm right here and clearly sale चल रही है। मैं चली। And you see यहाँ इतने सारे लोग शॉप कर रहे हैं। कहते हैं ये स्टोर हमेशा इतना ही बिजी रहता है, even at night. So Raja ji here is going to show me clothes fit for a Rani. ये हमारा अबाउट 100 years old पीस है और ये हैंडवर्क जी, है? टोटल हैंड वर्क है। ये देखिए, हल्का थोड़ा जरदोजी की सेटिंग है। जी। ये देखिए, तो ये रियल चांदी ये का रियल बना सिल्वर हुआ का है जी। 4-4.5 किलो वजन है, तो करीबन ये 6.5-7 लाख का बनता है। वाह। ये देखिए आप। ये भी सब सिल्वर का काम है जी, इसमें? ये सब रियल चांदी का काम है। इसका कलर देखिए, बहुत ही सुंदर कलर है। राजा जी आप मुझे ये ट्राई कराइए। बिल्कुल, आइए। I'm in love with this outfit. मुझे रेड में दिखाइए ना राजा जी, मुझे रेड कलर में भी देखना है। It need not necessarily be bridal. This outfit can very easily be team bride as well if you wear it right. Okay, time for the next one. वाह, खो गई, ये देखिए, खो गई। I love this lehenga in pastel shades as well. It's perfect for any Sangeet dance performance. Raja ji, this is the one. इस लहंगे ने मुझे नचा दिया. I think I've found what I'm going to buy. इतने सारे लहंगे ट्राई किए, but I never thought I'm actually going to go back to my roots and buy this typical Rajasthani पोशाक. Feel like a proper Rajput bhai साहब. इस ड्रेस में आप एकदम प्रिंसेस लग रही हैं, राजपूती प्रिंसेस। Thank you so much. मुझे यहाँ आके इतने सारे राजा जी ने इतने अच्छे अच्छे लहंगे दिखाए. तो ये क्या है, आप मुझे बताएंगे? हमारा शॉप 170 इयर्स ओल्ड है, तो ये सब ओल्ड डिजाइन्स हैं। कोई 100 साल है, कोई 120 साल है, ये 125 साल है। इतना ब्राइट है अभी भी. ये रियल है, चांदी है, ये गोल्ड फॉइल का बना हुआ है। जयपुर में ज्वेलरी में तो सोना और चांदी यूज होता ही है, लेकिन यहाँ कपड़ों में भी सोना चांदी का इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट आई फाउंड वेरी फैसिनेटिंग. I loved this, and this is what I'm going to take back. In the Pink City, this art center has been painting the town blue. You know, using special dyes, they make a whole range of handicraft items. From bowls to plates to trays to tiles, there's so many things.
The Blue Pottery Arts Center has a unique story to tell, and let's go check it out. Hello Anil ji, namaste. नमस्ते। Firstly, आपकी दुकान इतनी सुंदर लग रही है. It's such a stunning shade of blue. Please मुझे अपनी ये पॉटरी के बारे में बताइए. देखिए, ब्लू पॉटरी बेसिकली ईरान से आई हुई है। तो ये जयपुर ब्लू है. ये जयपुर ब्लू और ये ईरान ब्लू है. So coming here and learning this art from Anil ji, the man himself, has been a phenomenal experience. Thank you so much Anil ji. आप ये वर्कशॉप खोलिए और आप लोगों को इसके बारे में बताते हैं. Just to keep the art alive. Jaipur was a magical mix of traditional crafts and unexpected modern styles. It's like a pilgrimage place for shopaholics like me. My journey on Bazaar Travels has given me some of the most amazing shopping experiences. Through the old world charm of Kolkata to exquisite jewels of Jaipur. From street shopping to antique warehouses, from bridal lehengas to Rajasthani daris, from skillful artisans to salesmen who won my heart. You look like queen. I look like a queen. My shopping bags and memories are filled with experiences that I wish to treasure for a lifetime. जबरदस्त. जिस तरह से बरकत सिंह जी ने हमें हर एक चीज ट्रेडिशनल जो है जयपुर की दिखाई, मजा आ गया यार. मैं सच बताऊं, मैं जब डिप्रेशन में होती हूँ ना तो मैं पुरानी चीजों को देखती हूँ. मैं शॉपिंग पर जाती हूँ, या मैं ट्रेडिशनल चीजें होती हैं उनको देखती हूँ, उनको खरीदती हूँ, घर लेके आती हूँ, पैसे वगैरह इन्वेस्ट करती हूँ और मेरा मूड खुश हो जाता है. सच में ये वीडियो आज मेरे लिए बहुत अमेजिंग थी और मेरे मूड को आज मेरा दिन बना दिया इस वीडियो ने, और मेरे मूड को चार चांद लगा दे यार. मुझे ज्वेलरी बहुत पसंद है, मुझे लहंगे, चोलियां, मैक्सिस बहुत अच्छी लगती है, वो भी ट्रेडिशनल हो. और आपको सच बताऊं ना, जयपुर के सोने और चांदी का इस्तेमाल तो ज्वेलरी में होता ही होता है, लेकिन जो कपड़ों के अंदर सोने और चांदी का इस्तेमाल जो है, जो महाराज और रानियां करती थी ना, उसका ट्रेडिशनल आज भी कायम है. जाहिर सी बात है, जिसके पास पैसा है ना वो कुछ भी खरीद सकता है. और इस तरह के महंगे महंगे ड्रेसेस जिसके ऊपर सोने का चांदी की तारों से बनाया गया और हाथ के साथ जो सारा काम किया गया है, तो भी जाहिर सी बात है महंगा भी उतना होगा. लेकिन जो लोग अफोर्ड करते हैं वो तो फिर जरूर खरीदते हैं. जब मैंने पगड़ी जयपुर की बहुत अच्छी लगी, जिस तरह से उसने बल दे के पगड़ी बनाई ना है, उस बरका पे ना सूट भी बहुत कर रही थी ना, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी ना. उसके बोलने का अंदाज, उसके बात करने का अंदाज भी बहुत प्यारा था. और इसमें आज जो एक आर्ट वर्क दिखाया गया ब्लू का, एक राजस्थानी ब्लू था, जयपुर ब्लू था और एक ईरानी ब्लू था, वो अमेजिंग था यार. आजकल के दौर में ट्रेडिशनल चीजों को कायम रखना, उनके ऊपर जो है लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि आजकल नई नई चीजें आती है फैशन में और वो लोग जो है अपनी पुरानी रवायात को भूल जाते हैं, उनको इतना ज्यादा नहीं अहमियत देते हैं, नहीं करना चाह रहे होते. लेकिन इस तरह की शॉप्स जो है वो बनाई गई है स्पेशली, जहाँ पे लोग आते हैं, उन चीजों को जो इस्तेमाल करते हैं, खरीदते हैं और अपनी उन्हीं पुराने रवायत के साथ उसी तरह से जुड़े हुए हैं. इसीलिए तो जयपुर को भी पिंक सिटी भी कहा जाता है. हवा महल जो इसकी मैंने वीडियो देखी थी, जयपुर का एक वीडियो का व्लॉग देखा था, उसके ऊपर हवा महल के बारे में सारा जो टोटली हो रहा है बताया गया था. और इसके अंदर ज्वेलरी जो था वो एक नेकलेस, पुरानी ज्वेलरी जहाँ में महाराज रानियां जो आती थी पुरानी ज्वेलरी वो बनाते थे. और 100 पता नहीं कितने साल से बताया कि ये पुराना है हमारा ज्वेलरी सेंटर ना. कितनी खूबसूरत वो ज्वेलरी थी यार, मैं तो फिदा हो गया ऐसी ज्वेलरी, मुझे बहुत अच्छी लगती है यार सच में. अगर आप में से कोई ना पाकिस्तान आता है ना तो प्लीज मेरे लिए एक ना महारानियों वाला हार राज में लेके आना यार. मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा. आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. अपने क्या ख्याल में रखने का इंतजार. अल्लाह हाफिज.